हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा आज डिस्कशन होगी आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ योर 16th ऑफ जुलाई। और आज के न्यूज़पेपर में आपको पंजाब के साथ रिलेटेड डेफिनेटली कुछ न्यूज़ मिल रही है। सबसे पहली ही वो है और इसको हम इन्वायरमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पीसीएस में इसके ऊपर आने के चांसेस मेंस में, इंटरव्यू में आई से कि बहुत ज़्यादा है। और अगर डायरेक्टली इससे बात नहीं हो रही है देन इवन यू विल गेट एनफ चांसेस टू स्पीक ओवर इट। इन्वायरमेंट पे हमें बात करनी ही होती है, पोल्यूशन पे बात करनी ही होती है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप खुद से ही इस न्यूज़ के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको रिपोर्ट करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनो। नाउ फ्रॉम ब्लैक टू ब्लेस्ड 25 years ऑफ क्लीनिंग ऑफ काली वे। सो काली वे के बारे में ये हमारी न्यूज़ है एंड अ ग्लोबल मॉडल फॉर इट्स रिवाइवल। आप देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। Now, on July 16, 2000, environmentalist Balbir Singh Sichiwala, now a Rajya Sabha member and a Padam Shri awardee, stepped into a sludge-filled dying river in Punjab, accompanied by a handful of volunteers. Year है आपका 2000. So 2000 के अंदर जो है ये शुरुआत हुई थी and इसको क्लीन करने के लिए and it was beginning of a mission that completed 25 years. 25 साल में जाके हमने ये मिशन कंप्लीट किया है। The mission mobilized lakhs of citizens and drew attention from national and global leaders, eventually transforming the toxic stream into clean water body and revered as a sacred site. और इसमें सबसे important चीज पता है क्या है? ग्लोबल लेवल पर भी इसको फोकस किया जा रहा है। Now, though the journey was not easy, Kali Bai movement changed the narrative around the river restoration and its success driven by volunteerism. ये खास बात है कि गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं, वॉलंटियर्स का मेन एफर्ट है। Spiritual motivation, grassroots engineering inspired governments beyond Punjab, and today it stands as a global model for river revival. The revered Kali Bay, literally black इसको बोलते हैं, black river, काली नदी, और 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है किसकी, ऑफ ब्यास रिवर। ओरिजिनेट्स कहाँ पे होती है? इन धनोआ विलेज नियर मुकेरिया हाइड्रो प्रोजेक्ट। कहाँ पे है? इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सारा क्या है? पीसीएस का मटेरियल है आपके लिए। नाउ एंड फ्लोज थ्रू कपूरथला बिफोर मर्जिंग विद सतलज एट हरिके, और हरिके पतन में ये इकट्ठी जो है वो सतलज के अंदर मिलती है। So filthy was the stream that people began calling it Kali, that is black way. But for Sikhs, it was never just a water body. It was a sacred site where Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru and the founder of Sikhism, attained enlightenment. तो definitely ये बहुत ही important जो है वो एक जगह रखती है पंजाब के लोगों के लिए। For Sichiwal and his growing team of volunteers, it became a mission that combined spiritual reverence with ecological urgency. तो इस वजह से इसको बहुत ही कह लीजिए कि मन से इसकी सफाई जो है वॉलंटियर्स के साथ जो है वो की गई। नाउ क्यों ये ब्लैक हुई? फॉर डिकेड्स द काली वे सर्व्ड एज अ ओपन ड्रेन फॉर ओवर 80 विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बेस्ड इन होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर। तो सबका जो है, सबकी जो आपकी सीवेज है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल आपके एफिलेंट्स हैं वो सारे इसमें गिरते थे। A major drain that is Kala Sanghiya carrying industrial effluent also repeated into it, choked by weed, garbage, untreated sewerage, black water replaced fresh flow. Oxygen level plummeted and biodiversity vanished. ये इसकी हालत हुई। Now 25 years later, only a few villages still discharge. अभी भी discharge डाल रहे हैं इसके अंदर untreated water into the river in the absence of sewer treatment plant, because अभी भी उनके पास sewer treatment plant नहीं है। Though 6 treatment plants have been established, primarily in towns, while in several villages a pond system has been developed in such a way that sewage is treated and water is used for irrigation. तो ये थोड़ी सी betterment हमारे पास हुई है। Now community-led revolution है ये हमारा, and only on like July 16, 2000, Sichiwal and few volunteers began car seva without any government funding. They cleared weeds, they silted the riverbed, constructed ghats, raised awareness, revived the water flow, encouraged by public and presidential support. The Punjab then government launched a plan, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इनिशिएटिव आपका गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ, and to stop untreated sewage from your entering the bay. And it identified 73 villages, इसमें 53 कपूरथला के अंदर थे, 18 होशियारपुर and 2 in जलंधर for intervention. Each village was built upon to collect and treat sewage. तो ये काम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा हुआ। नेशनल एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन
2004, efforts gained national recognition when President APJ Abdul Kalam praised the project in a public address and visited the site in 2006 also. Very important event. Now in 2008, Time magazine listed Sijiwal among the world's top 30 environmental heroes. International platform including Copenhagen Climate Summit and Windsor Castle Interfaith Conference invited him as a speaker. Then in May 2004, President Kalam included the Kali Bay among India's top 9 achievements. He visited the bay multiple times between 2006 to 8 and spoke about it during over 2000 national and international lectures. Now in 2015, Indian Water Resource Minister Uma Bharti called the bay as Guru Asthan. So ये सारी बहुत अच्छी इसमें जो है अब तक क्या क्या हुआ वो सारे एपिसोड इस न्यूज़ के अंदर कवर किए गए हैं. And for Ganga mission, the Modi government adopted its model for Namami Gange project also. तो नमामि गंगे में भी अब आप इस बात का जिक्र कर सकते हो कि वो उसका जो मॉडल है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है काली बेन से. Around 500 village panchayat representatives from Ganga basin states were sent to study Sijiwal model. This is called Sijiwal model, and even Delhi government announced in the plans to replicate it for cleaning Yamuna. So on July 17, 2022 एक और छोटी सी घटना होती है जिसमें कि आपके भगवंत मान पंजाब सीएम he has taken a glass of water directly from the river और उसके कुछ दिन बाद ही after 2 days he was admitted to Apollo Hospital in Delhi and then at that time एक criticism भी आया कि मे बी ये रीजन जो है वो इस polluted river के पानी से हो सकता है. Now why did Chief Minister drink water from the river that still received untreated sewage? बट ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद से सीएम जो है ऐसा पानी पिए जो कि अभी इनको पता हो कि प्रॉपर ट्रीटेड नहीं है. तो एक तरह से एक अजीब सी है जो कंट्रोवर्सी वो इसके साथ तब जो है वो बनी 2022. So the act was meant to symbolize faith in the movement, but it also exposed the reality, a revolt, spiritual healing, and but environmentally vulnerable. तो ये कंट्रोवर्सी से फिर यही बात निकल के आई कि मे बी अभी जो है ये बात की क्लैरिटी नहीं है और मे बी सीएम ने पानी इसलिए दिया होगा दैट ही इज वेरी मच काइंड ऑफ हैविंग सिंबॉलिक वैल्यू कि ही हैज फुल फेथ इन द मूवमेंट कि अभी ये हमारी जो रिवोल्ट है वो क्लीन होने ही वाला है. नाउ प्रोजेक्ट स्टेटस एंड रोड अहेड. नाउ Sijiwal said now a majority of village ponds have been dug and pipes have been laid to carry household discharge to ponds where it is cleaned and then used in the fields. So already जो प्रॉब्लम्स इस वजह से थी वो पोल्यूशन कंट्रोल में हो चुका है, ये बात सर्टन कही जा रही है अभी. However, in a few village ponds are encroached upon, the pipes have not been connected. The treatment plant in the town like Kapurthala and Sultanpur Lodi function, but at times they discharge untreated water directly into the bay. तो हमें तो क्या करना है, अपना आंसर लिखना है, हमारे पास तो पॉइंट्स होने चाहिए. तो पॉजिटिव पॉइंट्स इससे पहले सभी आपको मिल गए हैं. क्रिटिसिज्म में अगर क्रिटिकली आ गया या नेगेटिव आ गया तो उसमें आप ये पॉइंट्स रेफर कर सकते हो कि अभी भी कुछ पॉइंट्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे, कुछ पाइप जो है वहाँ पे अभी फंक्शनिंग नहीं है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी अभी इसके ऊपर उठ रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने क्रिटिकल में डाल देंगे तो हमारे लिए ओवरऑल सारे की सारी न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है. Now several traditional tree species have been planted on the banks. Water is now so clean that water games like even boat races are held annually. तो ये एक अच्छा इसका इंडिकेशन है बिकॉज तभी वहाँ पे ऐसी रेसेस हो सकती हैं. घाट्स जो है एंड सिटिंग एरियाज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एडमिट दैट इफ गवर्नमेंट वांटेड इट कुड हैव कंप्लीटली स्टॉप द डिस्चार्ज ऑफ फिल्थी वाटर बाय सिंपली इंश्योरिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स रन प्रॉपर्ली. इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल अभी भी हो सकता है बिकॉज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं अगर उनको अच्छे से जो है वो काम करने के लिए कहा जाए और ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स और बढ़ाए जाएं तो और जो है अच्छा एफर्ट हो सकता है बिकॉज इसमें पोल्यूशन तब नहीं होगी. So sewerage board harbor sites lack of funds to operate plants. Fish die every few years due to low oxygen level in the polluted water, especially during summer. तो ये पॉइंट आपका क्रिटिसिज्म में काम आ जाएगा. Now rivers revival and lifelong commitment. Kali Bay journey is far from over. अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये जंग चल रही है. Although it flows cleaner, better हो गई है. Restoring full ecological balance requires unwavering political commitment, operational funding and local participation. तो आपके पास बनी बनाई कंक्लूजन भी आ गई है. इस तरह से आप अपने आंसर कंक्लूड कर सकते हो कि गवर्नमेंट का एफर्ट चाहिए, अभी भी जो है फंड्स इसमें अच्छे होने चाहिए ताकि ये काम चलता रहे. और Sijiwal said, cleaning is a never-ending process and it is now a part of our life. Very important saying, इसको भी आप यूज कर सकते हो.
and all natural flora and fauna have returned to the bay, and one can now see clear water most of its course. What began with one man and a prayer has turned into a movement of faith, resilience, environmental justice. ये अच्छी इसकी एक एग्जाम्पल है कि एक बंदे की सोच से उसके साथ जब और लोग जुड़ते हुए जाते हैं तो कैसे हम किसी भी बड़े काम को पूरा कर सकते हैं. एंड नाउ फ्रॉम ब्लैक वाटर्स टू अ ब्लेस्ड फ्लो, द काली बेस रिवाइवल स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर. इनफैक्ट यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए. एंड बेस रिवाइवल स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर, एवरी रिवर कैन बी रीबॉर्न. इस तरह से हर एक रिवर को आप जो है दोबारा से रीबॉर्न कर सकते हो, ठीक कर सकते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं और क्लू मिल रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें BCS में इस बार पूछे भी जाएंगे. नेक्स्ट न्यूज है विमेन इश्यूज को लेके. जनरली आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते ही हैं. मी टू की मूवमेंट रही है. अभी इस एडिटोरियल में उन्होंने इसको हेडिंग दे दिया है शी टू, तो हो सकता है शी टू जैसे टर्म्स के साथ भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए. और ये आपका रिलेटेड है एक बहुत ही बुरा इंसिडेंस जो है वो अभी आपका रिसेंटली हुआ, उसके बारे में ये आपका एडिटोरियल है. सेक्सुअल हरासमेंट विक्टिम इन बालासोर स्पोक अप. अब हरासमेंट के बाद अगर किसी ने बोला भी है तो भी उसकी बात सुनी नहीं गई है. कंप्लेन एंड शी वाज लेट डाउन बाय अ सिस्टम दैट रिफ्यूज्ड टू पे हीड. तो ये आप जो कह सकते हो कि क्रिटिकल आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप इस एग्जांपल को ले सकते हो. नाउ व्हाई डिड यू नॉट स्पीक अप? इम्प्लिसिट इन दिस क्वेश्चन पुट टू दोज हु हैव फेस्ड सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज. हरासमेंट के विक्टिम्स को जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इज द अजम्पशन दैट ब्रेकिंग अ साइलेंस लीड्स इनएविटेबली टू जस्टिस. ऐसे लगता है कि अगर आप बोले नहीं थे तो आपको तभी तो जस्टिस नहीं मिला, बोल देते तो जस्टिस मिलना ही था. बट अगर ये बात सही है तो फिर ऐसे बालासोर जैसे इंसिडेंसेस क्यों होते हैं? The young woman who died this week in Balasore, Odisha, 3 days after she set herself to fire, spoke up. She named her alleged harasser. उसने अपने आप को खत्म करने से पहले जस्टिस लेने की पूरी कोशिश की थी. Named alleged harassers a professor to the internal complaint committee. पहले कॉलेज में कंप्लेंट दिया. She filed a complaint with the police. Yet she was let down, driven to despair by a system that she trusted. सिस्टम पे ट्रस्ट करके वो लड़की बाहर निकल के आई थी. द क्वेश्चन दैट मस्ट नाउ बी आंसर्ड इज दिस: व्हाई वाज दिस यंग वुमन नॉट हर्ड? अब ये मत पूछो कि तुम क्यों नहीं बोली, अब ये पूछने को बनता है कि उसको सुना क्यों नहीं गया. The police have arrested the accused professors on charge of abetment to suicide, sexual harassment and criminal intimidation among others. तो अब जो है उनकी अरेस्ट हुई है. Principal of the college too is in the custody on the charge of abetment to suicide. अब suicide आया है इस वजह से उनको पकड़ा गया है. जब तक वो जिंदा थी तब तक वो कुछ नहीं कर पाई. And both had already been suspended from college following the young woman's self-immolation Saturday. Law must not take its course, but the large question looming over this tragedy about institutional responsibility and accountability. इसकी है power of asymmetries that take a high toll on those who speak out against abuse. In fact, जो बोलते हैं abuse के खिलाफ उनके ऊपर ही एक्चुअली कार्रवाई होती है, उन्हीं को परेशान किया जाता है इस लेवल तक कि उनको सुसाइड करना पड़ता है. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? विमेन इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली नजर नहीं आती है. It must be asked why 12 years after the Prevention of Sexual Harassment, that is POSH Act, was passed, marking what seemed to be a turning point in the long-drawn, painful confrontation with the dismal phenomena of sexual harassment and violence that women routinely endure, complaints still appear to fall on deaf ear. POSH Act आने के बाद भी ऐसा लगता है कि कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा है. Questions of institutional failure and lack of sensitivity can no longer be evaded. अब कितनी देर तक आप ऐसे क्वेश्चन से बचोगे? As the Supreme Court pointed out in 2023 when it issued directions for a time-bound exercise to verify whether all public and private bodies are compliant with POSH, they are compliant with the POSH Act. A law alone cannot ensure dignity and respect. सिर्फ लॉ बनाने से कुछ नहीं होता. लॉ आपको डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता जब तक कि इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे उसको इम्प्लीकेट नहीं किया जाता. Investigation will reveal what a college in Balasore did and did not do after the students complained of sexual harassment. But beyond this one college, beyond Odisha, other institutions too are stakeholders in building a safe environment for women. तो सिर्फ ये ओडिशा की बात नहीं है. Institutional stakeholders को आना चाहिए. It's time they looked at how far they have gone, how far they have been willing to go to ensure that women can study, work and travel safely. तो implication level पर कहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात को देखने का टाइम आ चुका है. ऑलरेडी वेल फ्रेम्ड आंसर आपके पास पड़ा हुआ है इस एडिटोरियल में.
Back in December 2012, shaken by the death of young women in Delhi after gruesome incidents of sexual harassment, there appeared a strong public resolve to push change in this periodically flared up. Since then, such as during Me Too movement start of 2018 and in 2023, when there was a swell of public support for the wrestlers who had accused powerful politicians. 2023 में हमें wrestlers के नाम पे ये सारी movements दिखी. In almost every case, it has been driven by women who refuse to be silent. और ये सारी ऐसी जो आपके मूवमेंट्स हैं ये फीमेल्स खुद बढ़कर लेके आई हैं और उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की, अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की है. दे हैव स्पोकन अप ओवर एंड ओवर अगेन एंड इट्स टाइम फॉर द सिस्टम टू लिसन एंड रिस्पॉन्ड. अब सिस्टम का टाइम आ गया है कि वो सुने. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ये खुद से ही आपको ये सारी चीज़ें रेफर करनी है जब कभी भी वुमेन इश्यूज पे आपको कोई क्वेश्चन आता है. तो ये सारी रेलिवेंट जो है बातें और कुछ भी पॉइंट्स आपको ये दिख रहे हैं उसको आप मार्क कर लो कहीं पे और बेटर टू यूज व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. नाउ दिस आर्टिकल इज अबाउट अगेन एनवायरनमेंट. दिस इज योर ज्योग्राफी GS1 और आपको शायद समझ में आने लग गया होगा कि किस तरह से एडिटोरियल्स का यूज कर सकते हो आप, किस तरह से आपको आर्टिकल्स को देखना चाहिए, किस तरह से आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और आई होप आप समझ पा रहे होंगे. सो दिस इज अगेन एन आर्टिकल और देखते हैं इसमें से कैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं. द सो कॉल्ड मिलेनियम सिटी, वो हमारा मिलेनियम सिटी कौन सा है? दैट इज गुड़गांव. वाटर लॉकिंग प्रॉब्लम बहुत गजब होगी हमें नजर आई है और आपको जनरली अगर कुछ ऐसा होता है तो वो नेम के साथ भी उस जगह का नाम लेकर भी इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? जैसे कि जिस टाइम पे आपके बेंगलुरु में ये सारे इश्यूज हुए थे तो बेंगलुरु को रेफर करते हुए भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली आपने खुद से एग्जाम्पल देना ही होता है. तो इस वजह से आंखें खोल के आप अच्छे से कान खोल के दिमाग खोल के अच्छे से सुनो इसको, ओके? लेकिन इसके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता. करंट अफेयर्स के साथ अगर आप अपने आप को रिलेट नहीं रखते, वहां से आप अगर इंपॉर्टेंट नोट्स को लर्न नहीं करते तो आप रैंक नहीं ले सकते. सो इट्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ मिलेनियम सिटी बोलते हैं हम. वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम आर इन द न्यूज अगेन इन गुड़गांव. फ्लैट्स एंड हाउसेज दैट सेल for prices that compare to real estate in western countries के equal वहाँ पे आपकी जो है वो चीज़ें आपके बिकते हैं घर और रेंटल पे जाते हैं with the rates compared to the starting salaries of many white collar professionals. इतना वहाँ पे महंगी जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है that have become islands surrounded by surging water. पानी ही पानी after rain induced flood. रेन से ही फ्लड आ रहा है. एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग देयर वर आल्सो सस्टेन्ड कट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. वो तो होनी ही थी. एज प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसफार्मर्स दैट किक इन व्हेन द गवर्नमेंट सप्लाई फेल्स आल्सो वेंट अंडर वाटर. बिकॉज अगर आपके खुद के भी अगर ट्रांसफॉर्म आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर्स लगाए भी हुए हैं तो वो भी वाटर लॉगिंग की वजह से काम नहीं कर पाएंगे. देयर वाज अ रीजनेबल एनफ an outcry over the state of infrastructure in a locality that is home to offices of Fortune 500 companies. Itna posh area hai wo, and a citizenry that has achieved well in many walks of global activity and expect a certain level of international lifestyle. International level का lifestyle वो बोलते हैं कि हमारा है, millennium city है, तो ऐसा बुरा हाल क्यों? But Gurgaon's problem is not primarily physical infrastructure. तो actually इसमें ध्यान देने वाली बात है सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं. इट इज वन ऑफ द मेंटल एटीट्यूड थ्रू विच अवर सिटीज आर बिल्ट, क्योंकि प्रॉपरली प्लान्ड ही नहीं है, ऑक्यूपाइड प्रॉपरली नहीं है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो डिफिकल्ट टू बिल्ड एंड ऑपरेट. बिल्डिंग्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. हाउ वी चूज टू लिव इन अर्बन एनवायरनमेंट्स विच आर सपोज्ड टू रिड अस ऑफ बैकवर्ड रूरल एटीट्यूड हैज ऑलवेज बीन अ मोर कॉम्प्लेक्स टास्क. अगर आपका एटीट्यूड तो बैकवर्ड ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में. It is made more complex in places such as Gurgaon because new urbanism has simply built upon old attitudes. सारे points आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. Attitude पुराना ही है rather than changing them. The most fundamental of these is the idea of public जो है publicness or the distinction between private and public. हमारे पास ये public sphere की अभी भी सेंस ही नहीं है, हमारा एटीट्यूड ही नहीं है.
और हमें पता ही नहीं है कि पब्लिक में कैसे रहना चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज करना चाहिए, हमें अभी इसकी कोई भी समझ नहीं है आज तक भी. दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज वेरी ट्रू ऑल्सो. But Gurgaon's problem is not primarily physical now. When we think of contemporary urbanization in India, the easy way out is to blame its ills on privatization. हर चीज privatization पे डाल देते हैं हम. And that largely meaningless concept of your neoliberalism, where the state is supposed to have ceded ground to private capital. हम कहते हैं कि हाँ जी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सारा काम प्राइवेट उसको फर्म्स को ही दे दिया है. Public interest would also have been much better served, it is frequently suggested, had public authorities looked after the welfare of citizens. Public authorities खुद अच्छे से कुछ काम नहीं कर रही welfare के लिए. This gross oversimplification overlooks the history of publicness in our everyday life. तो एक बार वर्ड आ रहा है publicness, इसकी टर्म के ऊपर ध्यान दो. तो सिंपली ये कहते रहना कि प्राइवेटाइजेशन हो गई है और ये कहते रहना कि आपकी इंस्टीट्यूशंस जो है, आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो वर्क नहीं कर रहे हैं, ये ही काफ़ी नहीं है. बिकॉज हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाइड करके देखते हैं हम, क्योंकि पब्लिकनेस, ये हिस्ट्री इसकी क्या है, हमारे पास पब्लिक में कैसे आपको चलना है, कैसे आपको अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ये समझ नहीं है. आगे देखते हैं कि पब्लिकनेस को कैसे डिफाइन करते हैं. सो हिस्ट्री ऑफ पब्लिकनेस इन अवर एवरीडे लाइफ, वन दैट ऑल्सो लाइज एट द हार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुड़गांव एंड अदर सच अर्बन डेवलपमेंट्स, इसको फोकस नहीं किया गया. The first license for private development was issued to Delhi Land and थोड़ी सी हिस्ट्री में जा रही है, and your Finance Corporation on April 21, 1981 under Haryana Development, आपकी एक्ट था 1975 in the village of your चक्करपुर in गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट. यहाँ से आपका गुड़गांव में जो है वो शुरू हुआ था बिल्टअप होना और उसका अर्बनाइज होना. तो क्या हुआ, पब्लिक लाइफ वाज entirely expressed through caste hierarchy and belief. So it was organized through arrangement of caste. इससे पहले ये सारा का सारा एरिया जो है ऑब्वियसली कास्ट के ऊपर बेस था. पब्लिक लाइफ भी कास्ट हायरार्की और बिलीफ के बेसिस पर की थी. Who could say what, pray where and clean the garbage were matters of caste. सफाई तो बिल्कुल हमने छोड़ के रखी हुई है कि अपर कास्ट हायर स्टेटा, तो सफाई तो उनके साथ उनका तो मतलब ही नहीं है. जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो मेंटेनिंग योर हाइजीन, क्लीननेस अराउंड योर सराउंडिंग्स इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड योर लेवल ऑफ इवन बीइंग अ वेल्दी पर्सन. अगर आप इंटेलिजेंट हैं, मेंटली भी आप इंटेलिजेंट हैं, तो उतनी ही ज़्यादा आप अपने आसपास क्लीनिनेस रखेंगे और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि उस चीज़ को छोड़ देंगे किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर या सिंपली अपॉन द गवर्नमेंट और खुद जो है वो मजे से गंद मचाएंगे. ऐसा नहीं होता है. नाउ who could say what, pray where? Now there was no generalized public life. तो उस एरिया में कभी भी generalized public life नहीं थी, but rather one that was entirely expressed through the personal attributes of caste. You looked after your own. New Gurgaon has simply built on that. तो इस एटीट्यूड के ऊपर ही नया गुड़गांव आपने बना दिया, लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं किया. Keeping the old social attitude alive while giving off the idea of newness. So this is wonderful article because ये सिर्फ ज्योग्राफी पे नहीं, सोशल इश्यूज पे भी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे भी है, चेंजिंग ऑफ योर सोशल एटीट्यूड पे भी है, पब्लिकनेस पे भी है. ये सारी बातों को आप किसी भी क्वेश्चन में वहां पे रिलेट कर सकते हो. राइट नाउ, और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को किस तरह से सोशल एस्पेक्ट के साथ भी लिंक किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेलिवेंट आपको पॉइंट मिल रहा है. सो अभी क्या है, कीपिंग ओल्ड सोशल एटीट्यूड्स अलाइव बाय गिविंग आइडियाज. नाउ न्यू गुड़गांव हैज सिंपली बिल्ट ऑन दैट, कीपिंग द ओल्ड सोशल एटीट्यूड अलाइव. पुराने एटीट्यूड्स आपके अभी भी जिंदा है, बाय गिविंग ऑफ द आइडिया ऑफ न्यूनेस. जबकि आप नया, अभी न्यूनेस की आइडिया की आप बात कर रहे हो. न्यू हाईवेज, मेट्रो स्टेशंस, ठीक है, ये सब बने हैं, एंड शॉपिंग प्लाजाज अपीयर टू स्पीक ऑफ ए न्यू पब्लिक लाइफ, बट दैट इज अ मिराज. बिकॉज सिर्फ बिल्डिंग से कुछ नहीं होता. Urban life in Gurgaon is largely organized through the idea that there is no public except that which belong to one's family, caste, class, circuit. जिसकी रजिस्ट्री है सिर्फ वही आपकी जगह है, आपने सिर्फ उसी को ही साफ रखना है और जो भी गंदा आप निकाल रहे हो वो आपको बाहर फेंक देना है. बिकॉज पब्लिक लाइफ या पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बाहर जो आपके घर के बाहर जो सड़क जा रही है, ये भी आपकी ही है. जो आपके आसपास
जो भी छोटे छोटे गार्डन्स हैं ये भी आपके हैं, यहाँ पे जो पॉन्ड्स हैं ये भी आपके हैं। वी डोंट हैव दिस सेंस। हम वही अपने पुराने थॉट्स के साथ कि हमारा घर, हमारी कास्ट, हमारा क्लास सर्किट, इसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं। It is this that also lies at the heart of what passes for urban planning. If, for example, it is considered personally beneficial to cement over a waterway or clear a forest area for a private residence, then that comes to pass. देखते ही नहीं है कि क्यों इतना लालच कर रहे हो, क्यों आप ट्रीज को, क्यों आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, क्यों आप ऐसे एरिया जहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी है उसको खराब करने के बाद आप ऐसी कोई स्ट्रक्चर ला रहे हो। The wider ramifications are rarely considered as there is really no sense of public and hence public welfare beyond the immediate circles in which people live. हमें सिर्फ अपने आसपास अपना इमीडिएट सर्कल, अपना इमीडिएट जो है एक छोटा सा आपका एक कॉलोनी, सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है, इसके आगे हमारी सोच नहीं है। And now this however has little to do with the privatization of urban development in cities such as Gurgaon. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के साथ ही आपकी बात जुड़ रही है। इट इज फंडामेंटली कनेक्टेड टू रूरलिज्म प्राइज्ड बाय अर्बन वैल्यू। आपके थॉट्स पुराने हैं, आप पुराने एटीट्यूड के साथ ही रूरल एरिया से उठकर अपने अर्बन एरियाज में आ रहे हो। At the present time, the most significant urban development in Gurgaon is taking place in what were earlier its rural hinterland. गुड़गांव वही है जहाँ पे कि पहले आपके गांव हुआ करते थे। In what were earlier its rural hinterland and the areas furthest away from Delhi, lands are being bought, sold, cleared for residential, commercial, infrastructure purposes. जो भी ट्री सब काट वाट के फटाफट हमने वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लाए। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी हाउ व्हाइल मल्टीपल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड फॉर मैपिंग, डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड टू मेक लैंड मार्केट रेडी इन दीज एरियाज। सारा का सारा ध्यान सिर्फ मार्केट रेडी करने पे है। एंड द स्टेट, प्राइवेट, कैपिटल सिटीजंस हैव कंबाइंड टू फर्दर द एंड्स of private benefit through willful rejecting the idea of publicness and public welfare. तो public welfare के साथ नई जो टर्म आ रही है that is publicness, वो मिसिंग है। सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट के ऊपर ही ध्यान है। एंड लैंड कंसोलिडेशन, देन इवन योर रेक्टेंगुलराइजेशन, दैट इज योर चकबंदी या किलाबंदी आर इंपॉर्टेंट फॉर द रैशनलाइजेशन ऑफ होल्डिंग दैट माइट अदरवाइज बी स्कैटर्ड और इरेगुलर लैंड that prevent the construction of road and otherwise other infrastructure. तो ये सारी अगर लैंड कंसोलिडेशन की भी गई है तो उसका भी मेन पर्पस सिर्फ ये था कि वहाँ पे हमने कैसे बिल्डिंग्स बनानी है। However, in most cases there are also contexts where पंचायत लैंड्स meant for general benefit, जो कि किसी जमाने में रूरल एरियाज में होते थे, वो are appropriated for personal use and profit, उनको भी छीन लिया गया। The assistance of a variety of government officials able to blend GIS technologies का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट के लिए, not for public welfare, public at large. GIS technologies that are meant to produce transparency to the need of private benefit is of course जो है crucial. ठीक है, ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ आप अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, प्राइवेट बेनिफिट के लिए अगर यूज करोगे तो आपको दिख रहा है कि उसका क्या रिजल्ट होगा। Now, as urbanizable land is built upon and becomes urban, the attitude towards publicness is played in appropriating public land for private benefit, simply scatter in different directions. तो आपका वो attitude कभी मर्ज ही नहीं हुआ, right? And the refashioning of rural spaces into urban ones is not accompanied by different attitude towards publicness and public welfare. Now, gated residential enclaves, gates आपने बड़े बड़े लगा दिए हैं, where the problem of public life are simply pushed out to the spaces and people beyond the walls are not really automatically new phenomena. तो सिर्फ walls के अंदर छिपी हैं आपकी problems, they are merely the concrete manifestation of mentalities that linger up the appearance of change. In fact, आपकी mentality भी ये हो गई है कि हम बाकी के समाज से अलग हैं, different है, और हमें कोई भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, और हमारा हक है सभी रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपकी ग्रीनरी हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो। So they are merely the concrete manifestation, and the roads and the underpasses that surround the luxury apartments and which get routinely flooded and engulfed by rainwater do so because of the mental infrastructure through which city planning and design happen. तो ये आपका मेंटल लेवल पर ही आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए भी सिर्फ लालच ही देखा, आपने फोकस नहीं किया कि आपको नेचर को भी साथ लेके चलना होगा। दैट रूरल स्टेट ऑफ माइंड दैट अप्रोप्रिएट्स public land
इनफैक्ट रूरल एरियाज में पब्लिक लैंड होता है, लेकिन अभी आपने वो छीन लिया फॉर प्राइवेट प्रॉफिट इज सिंपली reproduced within urban spheres where the idea of public, if it ever existed, has largely disappeared. Even rural areas में ये idea exist करता है, अब ये disappear हो गया है. City planning does not require smart planning and smart technology such as CCTV and command and control centers designed by global consultancy companies with little idea of local conditions of life. सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाकर, कमांड कंट्रोल लगाकर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो रही है, तो नहीं, बिकॉज आपको नॉलेज ही नहीं है लोकल कंडीशंस ऑफ लाइफ की. एंड द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लानिंग फॉर सिटी लाइफ इज द आइडिया ऑफ पब्लिकनेस. The sense that without this we have nothing but a hollow modernity. We spend an enormous amount of time debating the past and the nature of private and public lives of past generation. It is our strange weariness in giving the same attention to the problem of the present. Past की बातों में घुसे हुए भाई present के बारे में भी बात कर लो. That lie at the heart of the flooded streets. Flood क्यों आया है? इसके ऊपर आज को लेके फोकस करो. Of Gurgaon and other cities that challenge our claims to civilizational achievements. तो हमें लग रहा है कि हमारी civilization ने बहुत सारी achievement कर ली है, जबकि ऐसा नहीं है. So this is wonderful article and this written by distinguished research professor, Department of Anthropology and Sociology, और this is at University of London. इनका आप रेफरेंस देके ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिकनेस की, इसको भी रेफर कर सकते हो. और इनफैक्ट जब अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए तो ज्योग्राफी में आपको सोशल एस्पेक्ट कैसे साथ में लिंक करना है, एक मेंटल एटीट्यूड भी आपका सही होना चाहिए इन डिजास्टर से बचने के लिए. सब वंडरफुल रेफरेंस, इसको आप अच्छे से कवर करो. सो नेक्स्ट इज अवर news that is regarding important data of your unemployment. So seasonal factors again weighed on India's labor market in June as the unemployment rate remained unchanged at 5.6%. Although labor force participation rate declined to 54.2% in June from 54.8% in May, suggesting fewer people looked for jobs last month. लोग जो है वो जॉब्स के लिए भी बाहर कम निकल कर आ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा अनचेंज्ड है, ये शो कर रहा है रिसेंट डाटा. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्रीज लेटेस्ट मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे report released on Tuesday, while the unemployment rate for Indians aged 15 years and above was flat month to month in June at 5.6%. थोड़ा सा डाटा लर्न करो. There was a marginal decline in your unemployment to 5.6% from 5.8%. मई में थोड़ा सा कम हुआ था for females, while that of males जो है ये 5.6% हुई है. Now the monthly job data is based upon current weekly status approach. Under this approach, the activity status of person is measured for the 7 day preceding the date of survey. हफ्ते में कितना उसको जो काम मिला है वो होता है. Although the headline unemployment number was steady, the figures for rural and urban areas moved in opposite direction. कैसे? While rural unemployment declined by 20 basic points to 4.9% in June, urban unemployment rose. Urban unemployment बढ़ी है थोड़ी, 7.1% for those aged 15 years and above. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, the decrease in unemployment rate among rural males and females in June was due to rise in the share of own account workers with seasonal factor, prompting individuals to engage in small scale or self-initiated activities. Rural areas में सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज जो है वो आपकी बढ़ी है, इस वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई है. Meanwhile, an increase in urban unemployment was particularly pronounced among the youth. Youth में बढ़ा है with jobless rate increasing to 18.8% from 17.9%. और ये एज है आपकी 15 to 29 years. Female youth unemployment rose by 140 basic points, that is to 25.8%. While for males the increase was 80 basic point, that is 16.6%. तो थोड़ा सा डाटा डेफिनेटली आप मार्कअप कर ही लो. So summer bands है, while the all India unemployment rate was steady at 5.6%. इतनी बार पढ़ लिया वैसे ही याद हो गया. And after pausing 50 basic points जो है increase in May, थोड़ा सा ही बेचारा May में बेटर हुआ था. And labor force जो है decline for the second month in a row for most of the segments. Biggest fall जो है that was seen among young female in rural areas for whom the ratio decreased by 240 basic points to 20.5%, and the fall among the males in rural
एरियाज जो है 29 years एज ब्रैकेट वाज अप्रोक्सीमेटली हाफ, दैट इज ऑफ 110 बेसिक पॉइंट्स, और ये डिक्लाइन हुआ है टू 62%, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा, और इसको लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चार्ट में भी नजर आता है. सो सी, जून लेबर मार्केट डाटा है आपका, और मई और जून ब्लू एंड रेड के अंदर है. सो ऑल इंडिया लेवल में यहाँ से हमें नजर आ रहा है थोड़ा सा जून के अंदर आपको हल्का सा स्लाइट डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे फिर आपका ऑल इंडिया जो है यूआर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6 सेम है. रूरल मेल के अंदर देखो, ठीक है, और 15 to 29 में ये आपको थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है. रूरल फीमेल के अंदर 50 to 29 अगेन जो है ये आपको 22.9 से अभी कम होके 20.5 है. रूरल मेल 15 to 29 के अंदर देखें तो 40% आपका ये अभी जून में 13.8 है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटरमेंट नजर आ रही है. रूरल फीमेल के अंदर अगेन जो है पहले 13 था और अभी ये 13.7% है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो इसको थोड़ा सा डाटा लर्न कर लो, आपको यूजफुल साबित हो सकता है. नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी रिलेटिंग टू ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1. नाउ व्हाई द अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर देन बिफोर. तो ये एक्सप्लेन्ड आपका जो है पेज, उसके अंदर आपको ये पूरा न्यूज नोट मिल रहा है. इट वुड नॉट बी समर विदाउट द स्ट्रेच्ड आउट डेज. समर में आपके दिन लंबे होने ही हैं, but when it comes to the full astronomical day, a single rotation of planet Earth in which the hour hand moves twice around a standard clock, some of this year's shortest will be July and August. लेकिन अब हम ओवरऑल पूरा एस्ट्रोनॉमिकल डे की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, लास्ट वीक है सीन द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर सो फार. तो हमारे दिन जो है वो छोटे होने लग गए हैं. दिन और रात बनते क्यों हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ के बेसिस पे. According to data posted on July 11 from US Naval Observatory and International Earth Rotation and Reference System Service, एजेंसी का नाम याद करो. Rotation on July 9 was about 1.34 millisecond less than 24 hours. आपकी जो रोटेशन है वो 1.34 मिलीसेकेंड कम हो रही 24 आवर्स के अंदर. Why Earth is spinning faster than before? Not all days are equal. It is not completely out of ordinary. Earth's spins have been faster than usual lately. The average day has mostly shortened over the past decade, and within the past 5 years or so, full rotation has clocked in at a hair less than 24 more often than not. तो हमारे दिन जो है वो छोटे हो रहे हैं क्योंकि अर्थ की रोटेशन की स्पीड बढ़ रही है, और ये एग्जैक्टली 1.34 मिलीसेकंड जो है वो हमारा दिन कम था 24 आवर्स के कंपैरिजन में. नाउ फैक्टर्स डिराइविंग द चेंज इंक्लूड मूवमेंट ऑफ अर्थ कोर. अर्थ की कोर में चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, मून की पोजीशन में चेंज हो रहे हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन में चेंज आ रहा है. बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स डू नॉट सजेस्ट दैट द डेज विल शॉर्टन इन परपेचुइटी. In fact, it is just the opposite. For many millennia, days have been growing longer. Even a Tyrannosaurus rex that lived 70 million years ago would have experienced an average daily rotation of about 23 and 1.5 hour, studies have found. Past में in fact ये इससे उल्टा था, हमारे दिन बड़े थे, right? The lengthening trend is expected to continue according to researcher. और इससे हमें इनफैक्ट ये था कि ये दिन जो है हमारे लेंथन होने का ये जो प्रोसेस है ये आगे जाता रहेगा. Now tug of moon इसका एक फैक्टर है. The main reason has to do with your energy lost from the tides. Moon's gravitational tug is responsible for tidal changes on Earth because टाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और टाइड्स कौन लेके आता है? सन के साथ साथ अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल भी. सो टाइडल करंट्स हीट द ओशन वेरी स्लाइटली, dissipating energy which slows the rotation of Earth and lets the moon move farther away as time passes
At the moment, the rate of retreat is around 4 centimeter each year. तो क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो हमारा मून भी हमसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, कितना 4 सेंटीमीटर ईच ईयर. और टाइड्स का कैसे इम्पैक्ट है? मून्स ग्रेविटेशनल टारगेट रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइडल चेंज. जैसे मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ही टाइडल चेंजेस करती है, टाइड लाती है. और मून हमारे वैसे सन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन मून क्लोजर है, इस वजह से मून का इम्पैक्ट सन की कंपैरिजन में ज्यादा रहता है. टाइडल करंट्स जो होती है उसकी वजह से हीट द ओशन वेरी स्लाइटली, डिसिपेटिंग एनर्जी ज्यादा जो है वो फैलती है, ज्यादा गर्मी नहीं रहती है. एंड विच स्लोज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इस वजह से आपकी अर्थ की रोटेशन कम होती है. एंड लेट्स द मून मूव फार्दर, लेकिन अब मून ही दूर जा रहा है, जिससे टाइडल ट्रैक के अंदर भी चेंज दिख रहा है. In other words, the moon and earth can be thought of as a single system whose total angular momentum and measurement of its rotation is constant. तो हमें अर्थ को और मून को अलग अलग भी नहीं देखना चाहिए, एज अ यूनिट हम देखते हैं इनको. उस टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स रोटेशन. Now as the moon expands its orbit and its angular momentum increases, मून का ऑर्बिट ऑब्वियसली बढ़ रहा है क्योंकि हमसे दूर जा रहा है थोड़ा सा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है. Earth's angular momentum must decrease. इसी वजह से अर्थ का मोमेंटम कम हो रहा है. That is why the day grow longer, but that is a process that takes place billion of years and is complicated by short-term fluctuation. इसकी वजह से ओवरऑल वैसे क्या है कि दिन जो है वो बड़े होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बिकॉज इसमें शॉर्ट टर्म में चेंजेस जो है हमारे आती रहती हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं. So in the short term, centuries of data show that the speed of Earth's rotation has never been steady. और ये जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की स्पीड कभी भी स्टेडी नहीं रही है. There have been slow periods, इसमें slow periods भी रहे हैं early 1990s और 70s में, when the length of a day regularly surpassed 24 hours by more than 2 milliseconds, and there have been faster period like now. तो स्लो पीरियड भी रहा, फास्टर पीरियड जैसे अब हो रहा है ऐसा भी है, तो बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है. एंड मैनी फैक्टर्स विद इन एंड अबव अर्थ ड्राइव दीज चेंजेस. फैक्टर्स आपको ध्यान रखने की कौन कौन से होते हैं जो हमने डिस्कस किया. These include movement of material within the planet and from the core of the mantle to the crust. Recent studies have shown that climate change could also become a key driver of longer day. When ice melts into the sea, it spreads water away from the poles and towards the equator, and that makes the planet more oblate, which can slow its rotation. तो ज़्यादा पानी जब सेंटर में आ जाता है वो ऑब्लेट हो जाता है, इससे हमारी रोटेशन जो है वो कम हो जाती है. तो आगे चल के इसके कम होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जो है पोल्स के ऊपर जो बर्फ है, आपकी ग्लेशियर्स है, वो ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं. सो कम्बिनेशन में आपको ये जो है आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें कवर करके दे रहा है. अभी अर्थ की स्पिनिंग जो है वो फास्टर है पहले से, और कितनी है ये हमें एक दिन की स्टडी में उन्होंने बताया है. और सारे डेज वैसे भी इक्वल नहीं होते हैं, और अभी ये जो थोड़ी सी फास्ट हुई है इसके पीछे क्या कारण है वो डिस्कस किए गए हैं. अर्थ की रोटेशन एक जैसी अभी भी कांस्टेंट रही. पहले क्या था वो आपको बता रहा है, कौन कौन से इसमें हमारी स्पीड स्लो थी. और इसके अलावा मून की आपकी जो है ग्रेविटेशनल टग है उसका क्या इम्पैक्ट है टाइड्स के ऊपर, और कैसे जो है आपकी उसकी हीट जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है, उसका क्या इम्पैक्ट है ये डिस्कस कराया. एंड एट लास्ट जो है इसमें बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि किस तरह से आपका जब सेंटर ज़्यादा ऑब्लेट हो जाता है उससे भी आपकी रोटेशन की स्पीड स्लो होती है. तो मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा इसमें हैंडल किया गया है. सारे पॉइंट्स को आप अलग से रेफर करके लर्न करो यहाँ से. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग योर स्पेस मिशन. शुभांशु शुक्ला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और वापस आ गए हैं, इस वजह से उसके साथ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको पढ़ना ज़रूरी बनता है. आपसे पूछा भी जा सकता है और आपको पता होना चाहिए. नाउ एज शुभांशु शुक्ला एंड हिज कोलीग्स कहाँ से गए थे? एक्सियम 4 मिशन पे. took their first step on the recovery boat after coming out of the space capsule. They needed some assistance. इस स्टोरी की फॉर्म में है, लेकिन हम इसमें से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव कर लेंगे. It will be some days before Shukla who return to Earth on Tuesday. Tuesday को वापस आए हैं after spending 20 days spent किए हैं, 18 of which were spent on the International Space Station and can get back home to normal life. Bodies of astronauts undergo various stresses in space and requires time to recover. तो यही बेसिकली हमें इस आर्टिकल में पता चलेगा. स्पेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है ये आपके क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पता होना चाहिए, राइट? Now, the human body is under stress in space due to microgravity conditions and exposure to certain radiations that are absent or being on Earth.
कोई ऐसी रेडिएशन जो अर्थ पे नहीं होती वो आपको मिलती है। माइक्रोग्रेविटी कंडीशन से ग्रेविटी बहुत कम होती है। द इम्पैक्ट ऑफ दीज स्ट्रेसेस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉट स्टे इन स्पेस, कितनी देर तक आप स्पेस पे रह रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है कि इनका कितना असर होगा आप पे। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज इंटरेक्शंस ऑन दिस स्पेस स्टेशन he had said that he did not feel his usual self in first few days. कुछ दिनों तक तो आपको बहुत अजीब लगता है। It is first time for me, so I don't know what to expect. I didn't have some symptoms coming up. I did have some symptoms, so I am hoping that I will not have it going down. तो कुछ सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, ऑब्वियसली इंसान पहले डरता है और शायद ये कंटिन्यू ना करें मेरे साथ। मिशन कमांडर पेगिन विल्सन, who was on her 5th trip to space, said some people get space motion sickness. कई लोगों को स्पेस मोशन सिकनेस होती है, कमिंग अपहिल एंड सम पीपल गेट इट गोइंग डाउनहिल, जाते हुए भी। आई एम अ डाउनहिल पर्सन वेयर आई डोंट रियली एडजस्ट वेल टू ग्रेविटी एज आई एडजस्ट टू माइक्रोग्रेविटी। तो जो डाउनहिल टाइप है उनको माइक्रोग्रेविटी में इजीली एडजस्टमेंट हो जाती है। और इसके अलावा गेटिंग बैक टू नॉर्मल, सो द फर्स्ट थिंग दैट द 4 एस्ट्रोनॉमर्स बैक इन अर्थ एयर आफ्टर ऑलमोस्ट 3 weeks डिड आफ्टर walking out of the Grace space आपकी कैप्सूल जिसमें से वो निकलेंगे, was to undergo health check. Now they were then taken to by helicopter to NASA Space Center where they will rest for next few days. तो बहुत ही again controlled conditions में रहना पड़ता है एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने के बाद भी। The astronauts' health parameters will be monitored closely and based on the readings, personalized reconditioning plan will be worked out. तो उनकी body type के basis पे उनके लिए अलग से जो है वो प्रोग्राम बनाया जाता है रिकवरी का। रिकवरी प्लान विल फोकस ऑन इंप्रूविंग मोबिलिटी, बैलेंस वापस लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक कंडीशन, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड बॉडीज एबिलिटी टू पोजीशन एंड मूवमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। डिटेल्ड पोस्ट फ्लाइट मेडिकल चेकअप यूजुअली कंटिन्यू फॉर अ वीक और लॉन्ग आफ्टर रिटर्न। इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, बोन, आई, इम्यून सिस्टम आर वॉच, सब कुछ चेक किया जाता है। Astronauts experience space sickness in their initial day as the brain is confused by gravity because brain को आदत नहीं है माइक्रोग्रेविटी की, and acceleration information it receives from inner ear, क्योंकि हम अपने inner ear से भी जो है information लेते हैं ग्रेविटी के टाइम पे, that is essential for maintaining balance on earth. Now living in microgravity teaches the brain to not to listen to the inner ear. वहाँ पे जाके आप अपने inner ear को फोकस नहीं करोगे, लेकिन जब आप स्पेस से वापस अर्थ पे आओगे तो फिर से आपको दोबारा आपके ब्रेन को वैसे ही रहना होगा, इनर ईयर के ऊपर भी उसको जो है वो फोकस करना होगा। तो इस वजह से दे फेस डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग, तो एक कंफ्यूज स्टेट में आता है आपका ब्रेन। Also, bodily fluids tend to shift because of microgravity condition and usually move to the upper part of the body in space because gravity नहीं है तो ज़्यादा fluid आपका upper part में रहता है। As a result, astronauts experience lightheadedness और dizziness after the return. तो नीचे आके अर्थ पे आके वो आपको body fluid भी डाउनवर्ड जाएगा तो आपको ज़्यादा dizziness फील होगी। All these symptoms are likely to be less severe in Shukla and his crew mates who spent just 18 days. तो इन लोगों में शायद उतना असर नहीं होगा because इनकी स्टे बहुत कम देर के लिए थी। So need for reconditioning. So astronauts need to recondition after coming back to Earth to deal with their symptoms such as problem of balance, fixing their gaze and difficulty in standing up. The reconditioning process includes जो है training the astronaut to start listening to the inner ear again, helping with motion control, taking care of the conditions they face while standing, and it also deals with their perception of movement of their own body, strength and endurance. तो ये सब देखना होता है। According to NASA, around 92% of the astronauts experience post-flight injuries also, and they may suffer muscle sprain, tendon-related injuries and fractures. So these are very important features. और यहाँ पे इन्होंने एक आपको पिक्चर के थ्रू डायग्रामेटिकली दिखा दिया है हाउ शुक्ला रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Now SpaceX crew Dragon spacecraft transported Shubhanshu Shukla and others to International Space Station and also brought them back. तो आपका जो ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वही लेकर गया था, उससे ही वापस आए। इट रिमेन डॉक टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर अ पीरियड, द एस्ट्रोनॉट्स वर होम। जब तक वो रहे तब तक ये आपका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी वहीं पे डॉक रहा था। नाउ ड्रैगन जो है वो अनडॉक्ड फ्रॉम ISS at 4:45 PM जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है ऑन मंडे, और टू बिगिन इट्स 20 hours जर्नी टुवर्ड्स अर्थ रही इनकी, एंड द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड अर्थ सेवरल टाइम्स एज इट लोड इटसेल्फ टू द री-एंट्री लेवल। तो बार बार चक्कर लगा के फिर धीमे धीमे वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे लो डाउन करता है, एंड इट मेड अ स्प्लैश डाउन इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में फिर ये जो है फाइनली आके लैंड करते हैं एट 3 PM ऑफ योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ऑन ट्यूसडे।
और क्रू ड्रैगन एस्ट्रोनॉट अनडॉकिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। बिफोर री एंट्रिंग अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रैगन डिटैचेस इट्स ट्रंक टू रिड्यूस मास एंड सेव फ्यूल, एंड देन ड्रैगन जो है 2 drag parachutes are deployed at altitude of 18,000 feet followed by 4 main parachutes फिर उसके बाद आए, और उसके बाद देन फिर the 4 main parachutes reduce dragon speed drastically as it glides down at an angle for a safe splashdown, और ये इनका जो है वो पैसिफिक ओशन में हुआ, राइट। तो नेक्स्ट है कि ये जो इनकी लैंडिंग होती है, स्प्लैश डाउन होता है, ये ज्यादातर वाटर में ही क्यों किया जाता है, ये भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। सो स्पेसक्राफ्ट कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एंड हिज 3 कोलीग्स जो है स्प्लैश डाउन इन पैसिफिक ओशन आफ्टर 20 आवर्स जर्नी। 20 घंटे इनको लगे जर्नी के लिए ISS से नीचे आने के लिए। सो लैंडिंग इन द ओशन इज प्रेफर्ड वे टू ब्रिंग बैक एस्ट्रोनॉट फ्रॉम स्पेस, दो सम स्पेसक्राफ्ट आल्सो मेक अ लैंडिंग ऑन अ रनवे लाइक एयरक्राफ्ट, ऐसा भी होता है। प्री में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओनली इन द ओशन, तो ऐसा नहीं है, बट द लेटर है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नीड मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, लेकिन लैंड पे लाने के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होना चाहिए। फॉर इट्स गगनयान प्रोग्राम इंडियन जो है इसरो का है हैज डिजाइन टू क्रू मॉडल दैट विल लैंड ऑन सी, तो हमारे यहाँ पे भी गगनयान का सी के साथ ही हमारी लैंडिंग है। Why water is preferred? Splashdown is generally a simpler and safer option होता है। When a spacecraft begins to re-enter the Earth's atmosphere at an altitude of 110 से 120 किलोमीटर, very important fact, it is usually traveling at a speed of 27,359 किलोमीटर per hour। ध्यान दो इस डाटा के ऊपर, and there is not enough time for it to decelerate to speeds। अब आके ये इतने कम टाइम में अपनी स्पीड कम नहीं कर सकता, and that are suitable for vertical landing on the ground। वर्टिकल लैंडिंग ग्राउंड पे करें तो आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी। Additionally, braking system and structures like landing legs would be required। So it is safer to land a spacecraft in water even when it is traveling at 25 to 30 km per hour, speed of the Axiom 4 spacecraft at the time of splashdown, जो कि इसकी रही है। And the low viscosity and high density of water provides much greater cushion, तो वो buoyancy cushion का काम देती है। While it does not ensure a completely smooth landing, it absorbs enough shock, तो water पे काफी shock absorb होता है from the impact, avoid damage to the spacecraft also। Other reasons is availability of vast open spaces, वो already हमारे पास है। On the ground, the landing location has to be precise, because अगर land पे है तो आपकी location precise होनी पड़ेगी। In the ocean, there is no danger of hitting something else even if the spacecraft is dragged a bit off course, अगर थोड़ा सा वो अलग जगह पे भी उतर जाए। Capsules are designed to float on water and they are conical in shape, and either their tops or bottom जो है is rounded metal, and depending on how they land, and which works basically like a hull of a ship and keeps them bobbing on the surface। So these are another important points। How landing is executed? When spacecraft re-enters the Earth's atmosphere, it experiences deceleration। तो जैसे ही re-enter करता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो deceleration due to friction ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है, and but additional measures are required। लेकिन फिर भी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एडिशनल मेजर्स यूज करते हैं इसकी स्पीड को कम करने के लिए। वन सच मेथड इज यूज ऑफ पैराशूट्स। स्पेसक्राफ्ट यूजुअली डिप्लॉय 2 ड्रैग पैराशूट्स फर्स्ट, which stabilizes the vehicle following re-entry and reduce speed। Dragon spacecraft deploy these parachutes at around 18,000 feet। Then at about 6,500 feet, the drag parachutes जो है are detached and the 4 main parachutes are released, which continue to slow the spacecraft further। The spacecraft does not travel vertically to Earth but glides down at an angle from a point of re-entry to touchdown। तो ये glides down करते हुए ऐसे से आता है, and it travel distance of 5,000 to 7,000 kilometer। During this time, its speed comes down to about 25 to 30 kilometer जब तक वो नीचे आता है, which is safe for splashing in the ocean। So very interesting points, and बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे informative तो है ही, लेकिन questions भी definitely आपसे प्री में भी पूछे जा सकते हैं पीसीएस में, और मेंस में तो आपको पता ही है कि इस फेज के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वरना बिहेवियरल चेंजेस, इस तरह से आपको किसी क्वेश्चन का एक कंबाइंड एलिमेंट बना के पूछा जा सकता है कि किस तरह के बिहेवियरल या बॉडली चेंजेस या मेंटल चेंजेस जो है वो आपके एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ विल यू राइट? स्ट्रेट वे यू जस्ट रेफर टू दीज पॉइंट्स एंड गिव दिस एग्जांपल आल्सो लाइक फ्रॉम द रीसेंट हैपनिंग, राइट। आज की लास्ट न्यूज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है बेटा, एंड दिस इज सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, ओके, जो कि प्रॉब्लम्स हमें आज फेस करने के लिए अभी मिली हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कोई डाउट ही नहीं है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रॉक को लेके थोड़ी सी दिक्कत आई। एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI has apologized for horrific behavior of its chatbot. So in the chatbot है that is Grok, which last week posted praise for Adolf Hitler. Because अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। कुछ चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जिस तरह का डाटा फीड करते हैं उसको अच्छे से वो कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से तो एडॉल्फ हिटलर की उन्होंने प्रेज कर दी है ग्रॉक में, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस आए। दिस मार्क द बिहेवियर ऑफ ग्रॉक व्हिच वाज इंटीग्रेटेड इनटू मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 2023 से ऑलरेडी ये आ चुका है, एक्स के साथ लिंक हो गया है। ड्यू द अटेंशन ऑफ इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री आफ्टर इट रिटर्न्ड responses containing explicit and misogynistic slurs in Hindi slang. तो हिंदी स्लैंग में कुछ मिसोजिनिस्टिक जो है आपके भाषा which is not civilized वो इस्तेमाल की गई है। So determinants of AI behavior. So इसको लेके फिर अभी हमारे पास ये relevant issue आया है। Now there have been problems with output from these chatbots too. For instance, Google's even Gemini recently generated historically inaccurate images. Then large language module हैं आपके जो are often in fact these are assumed to possess a form of human-like intelligence due to their ability to generate coherent and conversational language. In 2021, a now famous research had equated the current crop of generative AI tool to sophisticated okay. In 2021, a now famous research had equated the current crop of your generative AI tool to stochastic, probabilistic और random function system. तो ये जो डाटा इनको दिया जाता है तो उसको ये actually random function system के basis पे ही actually ये relate कर पाती है आपकी AI. So these systems are built on synthetic text extruding machine. ये आपका जो सिस्टम है ये क्या है, दैट इज सिंथेटिक टेक्स्ट एक्सट्रूडिंग मशीन्स हैं अकॉर्डिंग टू M.L. Bender, a professor of linguistics at University of Washington. And now on the danger of your this stereotypic parrot scan language model be too big, क्योंकि जैसे इनको कहीं से भी इंफॉर्मेशन किसी की भी मिल गई है तो वो उसको एज अ पैरट वैसे ही बोल देंगे रादर देन की चीजों को आपस में इंटरलिंक करेंगे। तो ये दिक्कत आती है। सो दीस सिस्टम्स आर नॉट सेइंग एनीथिंग पर से बट रादर आउटपुटिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस इनको मिली है उसको ये एज इट इज आउटपुट कर देते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डाटा, जैसे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। देयर प्रोबेबिलिस्टिक नेचर आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई यूजर्स रेयरली रिसीव द सेम आउटपुट ट्वाइस। इसी वजह से आपको एक तरह की इंफॉर्मेशन दोबारा नहीं मिलती इवन इफ द इनपुट टोकन और वर्ड कैरेक्टर इज द सेम। द मॉडल कुड सैंपल अ स्लाइटली डिफरेंट आउटपुट टोकन और फ्रॉम कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी स्टेप, बिकॉज वो सारी इंफॉर्मेशन जो फीड की गई है वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे फिर से जो है दोबारा इंटीग्रेट होती है एंड अ सब्सिक्वेंट टोकन विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन दिस न्यू सीक्वेंस। देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ योर अनकंट्रोलेबिलिटी ऑफ द आउटपुट। तो ये जो आउटपुट है उसकी अनकंट्रोलेबिलिटी कैसे होती है। द फर्स्ट इज द सिस्टम डिजाइन। चैटबॉट्स अचीव ग्रेट अपरेंट फ्लुएंसी बाय मिमिकिंग वर्ड यूज पैटर्न इन ह्यूज डाटा सेट। तो बेसिकली ये सिर्फ मिमिक ही कर रहे हैं वर्ड्स को जो ऑलरेडी फीड किए गए हैं डाटा सेट में एंड देयर आर बाउंड टू बी सम abhorrent patterns in the training data if the data collection during the pre-training stage was not done with care। तो अगर डाटा ही अच्छे से प्री ट्रेनिंग स्टेज में नहीं डाला गया तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बुराइयां हो सकती हैं और इफ इट वाज डन विद द assumption that included all the bigotry online somehow जो है produces a more objective और unbiased outcome। और आपको लग रहा है कि सारा कुछ जो भी आप ले रहे हो वो सही ही होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, अगर आप इस तरह से डाटा फीड करोगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। सो डाटा यूज्ड बाय चैटबॉट व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन आल्सो मैटर्स। Grok has been instructed to use data on X और Grok का डाटा कहाँ से आएगा, X से आएगा, जहाँ पे कि हर तरह की बातें होती हैं। And this is one reason why it reflects opinion that are widely expressed on the platform. Second source of uncontrollability is user context. During the training stage, a model's parameters are adjusted so that it learns to perform tasks well. Once the model is deployed, these parameters are fixed and the only type of learning thereafter is in the context learning. तो जैसा आपने इनको
ट्रेन किया है, प्री फिक्स किया है, फिर उसी ही तरह की कॉन्टेक्स्ट लर्निंग की कंटिन्यू होती है। एंड इफ द सिस्टम इज कंस्ट्रेन्ड टू आउटपुट ओनली अ फ्यू फिक्स फ्रेजेस, और अगर आपने इनकी आदत सिर्फ कुछ खास फिक्स फ्रेजेस के साथ ही की है, यूजर्स कैन ऑलवेज सेट अप ए कॉन्टेक्स्ट डेलिबरेटली और नॉट, दैट विल मेक द आउटपुट हार्मफुल। तो यूजर अगर किसी और तरह से डेलिबरेटली जो है इसको लिंक करेंगे तो फिर आउटपुट गलत हो सकती है। Post deployment control on Saturday, XAI said that it had removed a set of hard-coded instruction. तो उन्होंने अपने instructions में ही change किया Grok को लेके to veer off course, and however some users said that the newly released Grok 4 continues to return to anti-Semitic propaganda. और Grok 4 दोबारा जो उसका 4 टाइप आया है ये फिर से प्रॉब्लम ही शो कर रहा है। एंड इन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर फिक्सिंग ए बग इन फैक्ट माइट इन्वॉल्व राइटिंग कोड और रोलिंग आउट एन अपडेटेड मॉड्यूल। हाउएवर जो आपकी LLMs है आर नॉट टिपिकली मॉडिफाइड वंस डिप्लॉयड, इनमें चेंजेस नहीं जल्दी हो सकती। सो मोस्ट जो है एडजस्टमेंट्स कैन ओनली बी मेड सुपरफिशियली, तो एक्चुअली इनबिल्ट इन एडजस्टमेंट्स नहीं होती है। सो द डीपर इट इज इन द पाइपलाइन, द डीपेस्ट बीइंग प्री ट्रेनिंग डाटा। जितना डीप आप उसको जो है बिल्डअप करोगे उतनी ही प्री ट्रेनिंग डाटा के साथ जुड़ा रहता है। एंड देन पोस्ट ट्रेनिंग एंड क्वेरी टाइम जो है द हार्डर इट इज टू चेंज द मॉडल बिहेवियर। विरांत जो है कलसीवाला एंड AI कलसीवाल AI मशीन लर्निंग इंजीनियर है, फाउंडर ऑफ LLM कंसल्टेंसी फर्म भी है, उन्होंने बताया ही सेड इट वाज अनलाइकली दैट Grok's बेस मॉडल वुड नाउ बी चेंज। तो बेस मॉडल इसका जो है वो चेंज होना मुश्किल है। सम बैंड-एड सॉल्यूशंस आर जनरली यूज्ड, और उसको लेके कुछ और क्या फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्ड कोडेड कन्वर्सेशन। LLMs can be trained to provide predetermined response to questions such as what model are you. If a few hundred such conversations are added in the training data, then model can be expected to parrot these responses. तो अगर आप इसी तरह से ही उनको बिल्टअप करते हो तो फिर पैरेंट अप रिस्पॉन्सेज ही देते हैं। एंड देन ब्रूट फोर्स ब्लॉकिंग है। 2015 गूगल इंटीग्रेटेड इट्स Photon app with image recognition software that identified black people as gorillas. अब जो ट्रेनिंग सेशन है, जो बिल्टअप सेशन है फोटोज ऐप के अंदर, वहां पे ही इस तरह से आइडेंटिफिकेशन है। देन इट ट्राइड टू फिक्स, उसको फिर फिक्स करने की कोशिश की द इशू बाय प्रिवेंटिंग द सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एक्चुअल गोरिल्लास, दो इसलिए बट दिस वुड अनडू द जनरेटिव क्वालिटीज दैट मेक AI मॉडल यूनिक। तो ये प्रॉब्लम है आपकी। Modifying system prompts, developers can exert some control over model knowledge base by inputting system prompts that will remain constant across multiple user interaction. However, LLM outputs can also be adversely influenced through prompt injection. तो in fact जो है prompts के साथ भी issue है। Developers can exert some control over, जो developer है वो भी आगे अपना control जो है वो उसमें रख सकते हैं, prompts के through changes लाएंगे। Changing RL rewards. Now reinforcement learning encourages the model to go towards solutions that lead to correct answer. This also involves humans giving the AI model feedback on which the answers are good or bad, और ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। But there have been instances of AI systems finding loopholes in the process. तो थोड़ा सा अभी AI के ऊपर और काम जो है अभी होने वाला है। So आपको क्वेश्चन AI के ऊपर आता है, to what extent जो है these kind of programs are successful, or critically you have to analyze. So these are the drawbacks which we are facing right now, और with examples आप इसको कोट कर सकते हो। So this is all for today, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है, इसको अच्छे से तैयार करो। सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे मेरा चैनल है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ से आप ले सकते हो, और उसको जस्ट आप हार्ड कॉपी में लेके just write it down somewhere, or you just simply underline the important facts और उसको बार बार रिवाइज करके यहाँ पे अपने फिक्स कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हो सके तो जितना भी शेयर करो वीडियोस को, और आपके कमेंट्स हमेशा ही मुझे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ फीडबैक भी आप जरूर प्रोवाइड करो। थैंक यू सो मच अगेन।